خدمت خلق کرنے والے کتنے لوگ ہیں؟ ابھی کورونا کے حالات میں سب کے سامنے، آنکھوں کے سامنے سارا منظر تھا میرے بھائیوں، لوگوں کے پیٹ بھرنے والے، کھانے پینے پہننے اوڑھنے اور اس کے علاوہ گھر کے اخراجات، کرایہ بھاڑا، تعلیم تربیت، ان ساری اخراجات کی ذمہ داری کے لیے ہر طبقہ آگے تھا۔ مسلمان بھی کام کر رہا تھا، مسلمانوں کے سارے طبقے کام کر رہے تھے، غیر مسلموں کے سارے طبقے کام کر رہے تھے۔ خلق کرنے والے تو دنیا کے ہر طبقے کے لوگ ہیں، جس سے یہ پیٹ بھرے گا انسان کی جسم کی زندگی باقی رہے گی، انسان کا جسم زندہ رہے گا، لیکن وہ غذا کون فراہم کر رہا تھا؟ میرے بھائیوں، جس غذا کی فراہمی سے انسان پیٹ نہ بھرے مر جائے گا لیکن جہنم میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیوں، لیکن اگر توحید کی غذا نہ ملے، سنت کی غذا نہ ملے، شرک سے اس کو پاک نہ کیا جائے، بدعات سے، باطل مناہج سے اسے آزاد نہ کیا جائے، تو وہ عذاب جہنم کا مستحق بن سکتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين وقال عز من قائل اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الى آخر الآية۔ صوبائی جمعیت اہل حدیث مہاراشٹرا کے قابل احترام امیر محترم، ناظم محترم، دیگر منتظمین کرام، آج کے اس عظیم الشان سمپوزیم کے صدر محترم، عالم اسلام کے جماعت اہل حدیث کے سر خیل اور پوری جماعت اہل حدیث کی آبرو ہمارے سامنے تشریف فرما ڈاکٹر وسیع اللہ عباس بستوی مدنی حفظہ اللہ، پروفیسر مدرس جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ، اسی طرح سے مدرس، مفتی اور محدث حرم مکی شریف، آپ تمام اہل علم، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، دعوت اللہ اور خدمت خلق منہج سلف کی روشنی میں تین گوشے ہیں اصل میں الگ الگ، اور چند باتیں ان تینوں گوشوں سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خصوصی جو بات ہے اس موضوع سے متعلق وہ آخری گوشہ ہے کہ ان دونوں پہلوؤں سے متعلق سلف کا منہج کیا ہے، دعوت اللہ اور خدمت خلق۔ اصل میں خدمت خلق، مخلوق کی خدمت، مخلوق میں چونکہ بہت سارے طبقے آتے ہیں، انسانوں کا طبقہ ہے اور ان کی خدمت کے کئی پہلو ہیں، اسی طرح مخلوق کے اندر حیوانات بھی ہیں، ایسے ہی چرند پرند بھی ہیں، ان سب کی خدمت کے حوالے سے بہت سارے نصوص، بہت سارے دلائل کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، ننگے کو کپڑا پہلانا، ایسے ہی مریض کی عیادت کرنا، دیکھ ریکھ کرنا، میرے بھائیوں اسی طریقے سے چرند پرند تک کو بھی کھلانے اور ان کے لیے غذا اور پانی کے انتظام کرنے وغیرہ کا تذکرہ موجود ہے۔ لیکن بنیادی طور پر خدمت خلق کا جو موضوع ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ سماج کے اندر جو مسلم سماج ہے یا کچھ غیر مسلم سماج بھی، ان لوگوں کی خدمت کرنا، ان کی انسانی جو بشری ضروریات ہیں ان ظاہری اور مادی ضروریات کی تکمیل کرنا خدمت خلق میں سب سے پہلے شمار کیا جاتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پر معیشت کی کمزوری ہے، غربت ہے، فقر ہے، محتاجگی ہے، اس اعتبار سے ان کے کھانے پینے کا انتظام،
ان کی تعلیم و تربیت کا انتظام، اسی طریقے سے ان کے کپڑے کا انتظام، اسی طریقے سے ان کے گھر دکان مکان میں تعاون کرنا وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ یہاں خصوصی طور پر مراد ہیں۔ ورنہ خدمت خلق میں، انسانوں کی خدمت میں، جنوں کی خدمت میں سب سے پہلا کام جو آتا ہے وہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت توحید اور سنت کا کام آتا ہے۔ لیکن چونکہ عام طور پر اصطلاح کے اعتبار سے اسے الگ کر دیا جاتا ہے، خدمت خلق جب کہا جاتا ہے تو عام طور پر اس پہلو سے ہٹ کر جو عام طور پر بشری تقاضے، انسانی زندگی کی جو ظاہری ضروریات ہوتی ہیں اسے مراد لیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن کریم کی آیات میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں بھی خدمت خلق کے حوالے سے بہت سارے دلائل، بہت سارے نصوص موجود ہیں، اور اس میں داخل چونکہ نہیں ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، رکوع کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عبادت کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور خیر کا کام کرو، وافعلوا الخیر، بھلائی کا کام کرو، خیر کا کام کرو۔ مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں جو باتیں لکھی ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو وافعلوا الخیر کہا گیا کہ خیر کا کام انجام دو، اس کے اندر تمام خیر شامل ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق سے متعلق، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے حقوق، اس کی کتاب کے حقوق، اور پھر اس کے بعد بندگان الہی کے حقوق، مخلوق کے حقوق، ہر اعتبار سے جو خیر ہے وہ وفعلوا الخیر کے اندر شامل ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ حدیث ہیں جن میں بہت ساری باتیں بتائی گئی ہیں، اس سلسلے کی بہت ساری حدیثوں میں سے ایک مشہور جو حدیث ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی بندے سے دنیا کی کسی مصیبت کو ٹالے گا یا اس کے ٹالنے میں حصہ دار بنے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو ٹال دے گا۔ یہ عام بات ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی بندہ اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد میں ہوتا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے فرمایا اطعم الجانی وفک العانی وغیرہ، یعنی کیا مطلب؟ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، جو قید میں ہیں ان کو چھڑاؤ، یہ مطلب ایک اشارہ ہے خدمت خلق کے حوالے سے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے کلام اور اللہ کے نبی کی حدیثوں میں دعوت اللہ کی جو بات ہے وہ بہت ہی زیادہ معروف ہے، بہت ہی مشہور ہے، اور اللہ کے کلام کی آیات میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں میں دعوت کی جو اساس ہے، دعوت کی جو بنیاد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت ہے، اور وہ بھی توحید عبادت کی دعوت ہے، توحید الوہیت کی دعوت ہے، جس سلسلے میں سب سے بڑا جھگڑا میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں اور انبیاء علیہ السلام اور رسل جو بھیجے گئے تھے ان کے درمیان جو سب سے بڑا جھگڑا تھا، سب سے بڑا ٹکراؤ تھا، اختلاف تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی توحید میں اختلاف تھا۔ ربوبیت کا مسئلہ بہت آسان تھا، مشرکین مکہ بھی ربوبیت کا اقرار کرتے تھے، خالق و مالک مدبر منتظم تسلیم کرتے تھے، اس میں بڑا مسئلہ نہیں تھا میرے بھائیوں، اور اس کے انکار کرنے والے دنیا میں بہت کم لوگ ہیں، انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، لیکن اصل جھگڑا توحید عبادت کا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی خالص ہو اس روئے زمین پر، اس آسمان کی چھت کے نیچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دھرتی کے اوپر عبادت اگر ہو تو صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ہو، جو ساری کائنات کا خالق و مالک مدبر و منتظم ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام کی جب سیرت قرآن کریم کی آیات میں صرف اگر آپ پڑھ کر دیکھنا چاہیں تو آپ کو اسی بات پر ترکیز ملے گی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہی بات حضرت نوح نے، یہی بات حضرت صالح نے اپنی قوموں سے، یہی بات حضرت ہود نے اپنی قوم سے، یہی بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے۔ الغرض تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا نچوڑ اور بنیاد کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید عبادت کی دعوت ہے۔ شرک جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیا جاتا تھا اس سے قوم کو کیسے آزاد کیا جائے، کیسے نکالا جائے، یہ سب سے بنیادی مسئلہ تھا۔ تو دعوت اللہ کی جو بات آپ کے سامنے کہی جا رہی ہے، دراصل یہ دعوت اس تناظر میں ہے کہ جماعت اہل حدیث کی دعوت کا اصل محور کیا ہے، جماعت اہل حدیث کی دعوت کا مشن کا سب سے بنیادی حصہ کیا ہے۔ اس تناظر میں آپ سمجھیں تو ایسے تو تمام فرائض کی دعوت، تمام مستحبات کی، سنن کی اور شریعت اسلامیہ کے ایک ایک گوشے کی دعوت
दावत इल्लाह के अंदर शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा जो बुनियादी मसला है, असलुल उसूल जो है, जो सारी दावतों की असास है और जिसकी बुनियाद पर इस दुनिया में अमन व अमान की जमानत है, जिसके नतीजे में आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला की जन्नत, मगफिरत और अल्लाह तबारक व तआला के रिजवान का वादा है। और इस तौहीद में खलल होने के नतीजे में दुनिया की सारी नेकियां, हत्ता की रुबूबियत की तौहीद पाई भी जाए, हत्ता की अस्मा व सिफात की तौहीद पाई भी जाए और सारे फराइज और पूरी शरीयत इस्लामिया पर अमल हो रहा हो, लेकिन इस तौहीद इबादत में खलल के नतीजे में इंसान को अल्लाह तबारक व तआला के यहां जन्नत नहीं मिल सकती। वो हमेशा हमेश के लिए अगर तौबा किए बगैर मर गया तो हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। इस हवाले से वो सारी आयतें अल्लाह के कलाम के अंदर मौजूद हैं, उन सारी तफसीलात से भी सरफे नजर करना है, क्योंकि असल जो नुक्ता आपके सामने पेश करना है वो ये है कि ये जो दो पहलू हैं, दावत इल्लाह का पहलू जिसमें अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद इबादत की दावत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत और इसकी जिद यानी शिर्क बिल्लाह से उम्मत को आजाद करना और उसकी मजम्मत बयान करना और मुशरिकीन को अल्लाह तबारक व तआला की नजर में क्या देखा गया है, अल्लाह के कलाम की आयतों में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों में, सारी बातें हमें बुनियादी तौर पर ये आपके सामने पेश करनी। एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू ये है कि जाहिर है कि नेकी के एतबार से, खैर के एतबार से, अजर व सवाब के एतबार से ये दूसरा पहलू खिदमत खल्क वाला भी शरीयत इस्लामिया के अंदर बयान किया गया, उसकी फजीलत बयान की गई, उस पर बहुत सारे अजर व सवाब का वादा भी किया गया। तो अब मसला यह है कि दोनों खैर है, अल्लाह तबारक व तआला की दीन की दावत, अल्लाह की तौहीद की दावत, शिर्क की मजम्मत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सहीहा की दावत और बिदात, खुराफात, हवाए नफ्स, मेरे भाइयों, और जितने भी तुरुक हैं, जितने भी रास्ते हैं सुन्नत से हटे हुए, उन तमाम रास्तों से उम्मत को आगाह करने का जो मिशन है, ये बहुत बड़ी फजीलत का काम है और ये बहुत बुनियादी काम है। अब हमारी और आपकी जो जिंदगी है, हमारा और आपका जो मुल्क है, वतन है, या वतन अजीज से बाहर, हिंदुस्तान से बाहर, दुनिया के गोशे गोशे में, मुख्तलिफ खित्तों में जो दावत इल्लाह के और खिदमत खल्क के सिलसिले में जो बेएतदाली पाई जाती है, जो इसके अंदर इफरात तफरीद का सिलसिला चलता है, इस हवाले से सलफ का मनहज क्या है? मेरे भाइयों, क्या आप नहीं देखते कि कितने हमारे भाई हैं जो बहुत ज्यादा हौसलामंद होते हैं, बहुत ज्यादा जज्बाती होते हैं उन मसाइल में जो मसाइल खिदमत खल्क से ताल्लुक रखते हैं। अभी कोरोना के हालात 2-3 साल पहले गुजरे हैं, उस वक्त आपने देखा होगा कि कोई तबका ऐसा नहीं था इंसानों का, रंग और नस्ल और मजहब और मिल्लत और कौम की तफरीक से आजाद होकर के, जिसने खिदमत खल्क में हिस्सा न लिया हो। मेरे भाइयों, मुसलमानों ने भी बढ़ चढ़ करके खिदमत खल्क में हिस्सा लिया और जमात अहले हदीस ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, अपनी जिम्मेदारी को अदा किया। मेरे भाइयों, कोई भी जमात रही हो, कोई भी खित्ता रहा हो, किसी भी इलाके की यूनिट रही हो, कोई कमी और कसर नहीं छोड़ी जमात ने, ये हमने आपने देखा है। लेकिन मसला यह है समझने का कि आखिर इन दोनों में पहल किस में करना है, इन दोनों में अव्वलियत किसकी है? असल काम दोनों फजीलत का काम है, लेकिन फजीलत में बरतरी किसको हासिल है? अहमियत के एतबार से और अंजाम कार के एतबार से क्या ज्यादा औला है, क्या बड़ा मिशन है और किसका दर्जा सानवी है, किसका दर्जा या किसकी हैसियत दूसरी है? मेरे भाइयों, ये असल में बुनियादी नुक्ता है जिसके सिलसिले में मुझे आपके सामने चंद बातें करनी है। तो असल में मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, कि देखिए, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद की दावत अगर उस शख्स को न दी गई या उन लोगों को न दी गई जो अल्लाह की तौहीद के से भी महरूम हैं, जिनके अकीदे में शिर्क है, जो कब्रों मज़ारों पर जाने वाले हैं, जो अल्लाह तबारक व तआला की उलूहियत के अंदर न जाने कितनी गैरुल्लाह को, मेरे भाइयों, जानदारों को, बेजानों को शरीक करने वाले हैं। ये लोग अकीदे और ईमान, सही अकीदे और ईमान से महरूम हैं और इसके भूखे हैं। और यही लोग पेट के भी भूखे हैं, इनके पेट में ग़िज़ा और खाने की भी जरूरत है, इन्हें पानी की भी जरूरत है,
इनके जिस्मों पर सही कपड़े नहीं है, इन्हें कपड़ों की भी जरूरत है, इनके सरों के ऊपर छत नहीं है, इन्हें घर की भी जरूरत है। यकीनन दोनों तरह की जरूरतें हैं, दोनों तरह की भूख है। हमारा काम, जमाते अहले हदीस का काम, और अभी आपने खिताब सुना है मेरे भाइयों, शेख अब्दुल वहाब साहब हाफिज़हुल्लाह ने ये बात बार बार कही कि सारी आजमाइशें, सारी मुसीबतें, सारी कुर्बानियां जो हमारे उलमा ने दी, वो जुर्म ये था कि वो तौहीद के दाई थे, जुर्म ये था कि वो मेरे भाइयों सुन्नत के दाई थे। उनका जुर्म ये था कैदो बंद की सजाएं, मेरे भाइयों कोड़ों की मार और जला वतन किया जाना, मार डाला जाना, जला दिया जाना, इस तरह की जितनी सजाएं आपको मिलेंगी, आपको पढ़ने को मिलेंगी, एक ही जुर्म है मेरे भाइयों, वो ये है कि हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने हमेशा तौहीद के मिशन को बुलंद रखा, उसके झंडे को ऊंचा रखने के लिए हर तरह की मशक्कत बर्दाश्त की, हर तरह की कुर्बानियां बर्दाश्त की। जान चली जाए बर्दाश्त है, माल छीन लिया जाए बर्दाश्त है, इज्जत व आबरू के साथ तलाउब कर लिया जाए बर्दाश्त है, हर तरह की अजियत दे दी जाए बर्दाश्त है, लेकिन अल्लाह की तौहीद की दावत के सिलसिले में कोई समझौता नहीं। शिर्क की मजम्मत जबान से भी, कलम से भी, हर एतबार से मेरे भाइयों जिहाद किया। और ऐसे ही सुन्नत की दावत, सुन्नत के खिलाफ हवाए नफ्स है, ख्वाहिशात नफसानी, बिदात, मुहदसात और अक्ल परस्तियां, और मेरे भाइयों शरीयत और सुन्नत के उसूलों से आजाद होकर के मनमानी बातें करने वाले लोग, इसके खिलाफ भी मेरे भाइयों अलम जिहाद बुलंद करने वाले हमारे ये उलमाए अहले हदीस थे। मेरे भाइयों पूरी तारीख को अपने सामने रखें, ये तो इस तनाजुर में कि हम अपने मुल्क वतन की तारीख में, मुल्क वतन में तारीख अहले हदीस की बात कर रहे थे, इसलिए ये इशारा आपके सामने किया जा रहा है, इहाला आपके सामने किया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब ये फैसला कौन करेगा कि हम एक गरीब शख्स का पेट भरें, उसे खिलाएं पिलाएं, ये पहले जरूरी है, उसे कपड़ा पहनाएं, ये पहले जरूरी है, यानी खिदमत खल्क करने पर तवज्जो दें, ये पहले जरूरी है, या वो जो अकीदा और ईमान का भूखा है, जो सुन्नत का भूखा है, पहले उसको पहले उसे तौहीद की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे सुन्नत की ग़िज़ा पहुंचाई जाए, पहले उसे शिर्क से आजाद किया जाए, पहले उसे बिदात और हवा और हवाए नफ्स से आजाद किया जाए। पहले क्या जरूरी है मेरे भाइयों, क्या करें, इस हवाले से मैं चंद हवाले भी आपके सामने पेश करूंगा, आपको गौर करने की जरूरत है। फिर यह पहलू भी सामने रखें कि यह काम जो खिदमत खल्क का काम है, ये काम करने वाले, इस मिशन को बहुत ज्यादा जज्बात के साथ आगे बढ़ाने वाले कौन लोग हैं, इसमें समाज का, मिल्लत का, कौम का, वतन का कौन कौन सा तबका लगा हुआ है, और आपके इस तौहीद की दावत के मिशन में कौन है, सुन्नत की दावत के मिशन में कौन है, और उम्मत को शिर्क की आलाइशों से बाहर निकालने और बिदात के खुराफात के दलदल से निकालने की जिम्मेदारी कौन उठा रहा है, यह पहलू भी समझने की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, इस हवाले से बहुत कुछ बेतदाली देखने में आती है, और आपको यह सादत और शरफ हासिल है, जमात अहले हदीस को यह सादत हासिल है कि जमात अहले हदीस वाहिद जमात है मेरे भाइयों, जो पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में जहां जहां वो हैं, चाहे बड़ी तादाद में हो, छोटी तादाद में हो, चंद अफराद हो, एक फर्द हो, अपने दिल में जो दर्द लेकर के जिंदगी गुजारता है, वो दर्द है उम्मत को शिर्क से आजाद करने का, वो दर्द है उम्मत को खालिस तौहीद पहुंचाने का, वो दर्द है उम्मत को सुन्नत की खालिस दावत देने का, वो दर्द है उम्मत को बिदात से, खुराफात से, और वो रास्ता जो लोगों ने नबी की सुन्नत से, सहाबे किराम की सुन्नत से हट करके अपनी मनमानी सुन्नत के रास्तों के खिलाफ बना रखे हैं, उन रास्तों से आजाद करने का जज्बा हर फर्द जमात अहले हदीस का दुनिया के गोशे गोशे में लेकर के चलता है। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ऐसी सूरत हाल में क्या इनका कोई साथी है, क्या इस मिशन में इनका कोई हामी है? आप अगर ये जान रहे हैं तारीख के हवाले से कि हमें, हमारे उलमा को, हमारे असलाफ को और तारीख के हर दौर में इसलिए सजाएं दी गई, सऊबतों का सामना करना पड़ा कि वो तौहीद के दाई थे, वो सुन्नत के दाई थे, वो शिर्क के खिलाफ थे, वो बिदात के खिलाफ थे, और वो बातिल मनाहिज और रास्तों के खिलाफ थे। इसलिए उनको अगर सजा देने वाले सजा दे रहे हैं, तो भला वो इस मिशन में साथ कैसे दे सकते हैं? जो सजा देने के दर पे हो,
हमारे उलमा की जान लेने के दर पर हो, कैदो बंद की सजाएं देने के लिए कोई भी दकीका छोड़ने के लिए, बर्दाश्त करने के लिए तैयार ना हो, भला वो हमारी इस तौहीद के मिशन के साथी कैसे हो सकते? अगर वो तौहीद के मिशन में हमारे साथी होते तो भला ये कैदो बंद की सजाओं की नौबत क्यों आती, जेल की नौबत क्यों आती, जानो माल की तबाही की नौबत क्यों आती? मेरे भाइयों, मसला वाज़े है, मसला वाज़े है कि आपके इस मिशन में आपका कोई साथी नहीं है, आप मुनफरिद है इस मिशन के अंदर। और याद रखना, जमात अहले हदीस के जियालो, हम अपने बड़ों के बीच में गुफ्तगू कर रहे हैं। याद रखें कि इस सादत को, इस शरफ को अपनी जिंदगी से कभी जुदा नहीं होने देना। दूसरा पहलू समझो, खिदमत खल्क करने वाले कितने लोग हैं। अभी कोरोना के हालात में सबके सामने, आंखों के सामने सारा मंजर था। मेरे भाइयों, लोगों के पेट भरने वाले, खाने पीने, पहनने ओढ़ने और उसके अलावा घर के अखराजात, किराया, भाड़ा, तालीम, तरबियत, इन सारी अखराजात की जिम्मेदारी के लिए हर तबका आगे था। मुसलमान भी काम कर रहा था, मुसलमानों के सारे तबके काम कर रहे थे, गैर मुस्लिमों के सारे तबके काम कर रहे थे, सियासी लोग काम कर रहे थे, सोशल लोग काम कर रहे थे, नेता लोग काम कर रहे थे, हुकूमत के इदारे काम कर रहे थे। तो खिदमत खल्क करने वाले तो दुनिया के हर तबके के लोग हैं। जिससे ये पेट भरेगा, इंसान की जिस्म की जिंदगी बाकी रहेगी, इंसान का जिस्म जिंदा रहेगा, लेकिन वो गिजा कौन फराहम कर रहा था? मेरे भाइयों, जिस गिजा की फराहमी से इंसान पेट न भरे मर जाएगा लेकिन जहन्नम में नहीं जाएगा। मेरे भाइयों, लेकिन अगर तौहीद की गिजा न मिले, सुन्नत की गिजा न मिले, शिर्क से उसको पाक न किया जाए, बिदात से, बातिल मनाही से उसे आजाद न किया जाए, तो वो अजाब जहन्नम का मुस्तहिक बन सकता है। और अगर शिर्क के साथ दुनिया से गया या अकीदे की बिदात के साथ दुनिया से गया तो फिर हमेशा हमेश के लिए जहन्नम रसीद हो जाएगा। मुझे बताओ मेरे भाइयों कि क्या दावत अल्लाह का मिशन पहले है या खिदमत खल्क का मिशन पहले है? सलफ का मनहज क्या है? इसीलिए आप कुरान करीम की आयतों को आप देखें, अंबिया अलैहिस्सलाम ने पहले तौहीद की दावत दिया है, हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने तौहीद की दावत दी, और जो फहाशी का अमल और जुर्म कौम में चलता था उससे बाद में रोका। मेरे भाइयों, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने कौम को पहले तौहीद की दावत दी, शिर्क से आजाद करने का काम किया। कौम नाप तौल में कमी करती थी, डांडियां मारती थी, कारोबार में खियानत करती थी। इस जुर्म से जो कबीरा है लेकिन शिर्क से कमतर है, तौहीद के मकाम के सामने इसका दर्जा कम है। यह काम बाद में, इसकी दावत काम में, इसकी दावत बाद में मना किया गया। नाप तौल में कमी ना करो बाद में, लेकिन पहले किससे रोका गया? शिर्क से रोका गया। अल्लाह के कलाम की आयतें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें देखें। आप अलैहिस्सलाम ने हजरत मुआज़ इब्न जबल को, अबू मूसा अशअरी को भेजा और आपने उनको क्या कहा? आप लोगों का सामना एक ऐसी कौम से होने वाला है जो अहले किताब हैं। फलयकुन अव्वल मा तदऊहुम इलैहि इबादतुल्लाह शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह इला अन युवहिदुल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ने फरमाया, तुम्हारी दावत का सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? तुम इस बात की दावत दो कि वो एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करें, शिर्क से बाज आ जाएं। उसके बाद नमाज की दावत देना, उसके बाद ज़कात की, उसके बाद रोजे की और दीगर चीजों की दावत देना। यहां तक कि सबसे पहली दावत क्या हो? इला अन युवहिदुल्लाह, अल्लाह की तौहीद का इकरार करें। यह तौहीद इबादत है, इबादत रुबूबियत नहीं है। मेरे भाइयों, पहले उलूहियत है, रुबूबियत उसके बाद अस्मा व सिफात, उसके बाद याद रहे ये सारी आयतें और हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे सामने हैं। और मौजू चूंकि वाकई बहुत लंबा है इसलिए सारी बात तो नहीं कर सकते। आइए मैं इसको जरा उसूली तौर पर 2-4 मिनट जो बचे हैं मैं उसूली तौर पर आपके सामने बयान करूं कि आखिर खिदमत खल्क पहले है या खिदमत खल्क को तरजीह देना है या दावत अल्लाह के मिशन को सबसे पहले लेकर के चलना है। और दावत अल्लाह में अल्लाह की तौहीद की दावत, उलूहियत की दावत, शिर्क के खिलाफ ज़बान कलम से जिहाद, मेरे भाइयों सुन्नत सहीहा की दावत, बिदात और मुहदसात और हवाए नफ्स के खिलाफ ज़बान और कलम से जिहाद,
कौन सा काम पहले है, क्या है सलफ़े सालिहीन का मनहज। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, अजअलतुम, गौर से इस आयत करीमा को सुनना, अजअलतुम सिकायतल हाजी व इमारतल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व जहद फी सबीलिल्लाह ला यस्तवून इंदल्लाह वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम अअज़मु दरजतन इंदल्लाह व उलाइका हुमुल फाइज़ून। ये सूरह तौबा की दोनों आयतें हैं। आप याद रखें, अल्लाह तबारक व तआला साफ फरमाता है, ए लोगों, क्या तुमने हाजियों को पानी पिलाना, खाने खिलाने पिलाने की बात चल रही है मेरे भाइयों, खिदमत खल्क की बात चल रही है। अल्लाह फरमाता है, क्या तुम लोगों ने हाजियों को पानी पिलाना और क्या करना, मस्जिद हराम की इमारत, यानी क्या मतलब, उसकी देख रेख करना, उसकी सफाई सुथराई करना, उसकी निगरानी और निगहबानी करना, क्या तुमने इन कामों को वैसे बना लिया है जैसे ईमान लाने वाले हैं। तुम्हारा ये काम करना क्या वैसे ही है जैसे ईमान लाने वाले ईमान लाते हैं। ईमान लाना और तुम्हारा ये काम करना, तुम बिलाशुबा मस्जिद हराम की खिदमत करने वाले हो, हाजियों को पानी पिलाने वाले हो, उनको धूप से बचाने के लिए खेमे और टेंट लगाने वाले हो, कुएं खोद कर खजूर डालकर मीठा पानी पिलाने का इंतजाम करने वाले हो, सब कुछ तुम करते हो, लेकिन क्या ये काम कमन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, क्या ये वैसे हो सकता है जैसे अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने वाला, यानी या क्या खिदमत खल्क करने वाला वैसे हो सकता है जैसे तौहीद की दावत देने वाला, तौहीद ईमान लाने वाला, आखिरत पर ईमान लाने वाला, अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का इकरार करने वाला और अल्लाह तबारक व तआला की राह में अल्लाह की तौहीद की सरबलंदी के लिए जिहाद करने वाला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ला यस्तवून इंदल्लाह, ये दोनों कभी अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। कहा ईमान वाला, कहा तौहीद की दावत, तौहीद का इकरार, तौहीद पर अमल, आखिरत पर ईमान की दावत, और कहा तुम ये हाजियों को पानी पिलाने की नेकी और हरम शरीफ की खिदमत करने की नेकी को तुमने ईमान वालों के बराबर बनाने के लिए सोच लिया है। ला यस्तवून इंदल्लाह, ये अल्लाह तबारक व तआला के यहां बराबर नहीं हो सकते। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वल्लाहु ला यहदिल कौमल ज़ालिमीन, जालिमों को अल्लाह तबारक व तआला हिदायत नहीं देता। उसके बाद मजीद अल्लाह ने अगली आयत में फरमाया, अल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फी सबीलिल्लाह बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम, जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए, वजाहत के साथ, जो लोग ईमान लाए और अपने ईमान की तहफ्फुज के लिए, सलामती के लिए, अल्लाह पर, अल्लाह की तौहीद पर कायम रहने के लिए अपने वतन को छोड़ करके दूसरे वतन चले गए, हिजरत करके चले गए और अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानों के जरिए से जिहाद किया, मालों के जरिए से जिहाद किया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, आज़मु दरजतन इंदल्लाह, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है, इनका मकाम अल्लाह तबारक व तआला के यहां बहुत बड़ा है। तो यह है मनहज सलफ, तौहीद की दावत, अहले हदीसों का मिशन और खिदमत खल्क, इन दोनों के बीच में मुआजना करके देख लो क्या है मनहज सलफ़े सालिहीन का। अल्लाह का कलाम कहता है, तौहीद की दावत पहले है और खिदमत खल्क बाद में है। दोनों काम करने वाले जरूर नेकी का काम करते, लेकिन दोनों का दर्जा एक नहीं हो सकता। अल्लाह की तौहीद, ईमान, अल्लाह की राह में हिजरत, अल्लाह तबारक व तआला की राह में जानो माल से जिहाद, इनका दर्जा अल्लाह के यहां बहुत बड़ा है। उलाइका हुमुल फाइज़ून व उलाइका हुमुल फाइज़ून, और यही लोग हकीकत में कामयाब होने वाले। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, अब ये तो बात लंबी है, मैं दो तीन खाली इशारा करना चाहता हूं। उम्मत के अइम्माए सलफ का मैं नाम लेना चाहता हूं। मेरे भाइयों, इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह, उनके शागिर्द इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह, और ये तो चंद चीता नाम है, उम्मत के आलाम की फहरिस्त लंबी है। इनकी किताबों का मुताला करने से मालूम पड़ता है। मेरे भाइयों, इख्तिसार के साथ वो बात अर्ज करूं मैं, 1-2 मिनट बाकी बचे हैं टाइम के ऐलान के मुताबिक। इमाम अहमद इब्न हंबल बयान फरमाते हैं, सबसे बड़ा काम अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है। सबसे बड़ा काम क्या है? अल्लाह की तौहीद का इल्म हासिल करना है, अल्लाह की तौहीद की मारिफत हासिल करनी। अल्लाह की मारिफत
اس کی توحید کا حق جاننا سب سے پہلا کام ہے اور سب سے زیادہ ضروری ہے. کتنا ضروری ہے؟ اتنا ضروری ہے جتنا انسان کی زندگی کے جینے کے لیے، زندگی کے لیے کھانے پینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے جینے کے لیے جتنا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنا پینے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے کہیں زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کھانے کی ضرورت دن میں ایک بار دو بار ہے، پینے کی ضرورت دن میں ایک بار دو بار ہے. اتنے سے انسان زندہ رہے گا، بلکہ 2 دن 4 دن بھی نہ کھائے، ہفتہ عشرہ بھی نہ کھائے، چند گھونٹ پانی پر بھی انسان کی روح چل سکتی ہے، انسان زندہ رہ سکتا ہے. لیکن اللہ کی توحید کا علم، اس کی معرفت اور اس کی دعوت اتنی ضروری ہے جتنی انسان کی سانسوں کی ضرورت ہے. جتنی سانسیں 1 سیکنڈ میں 2 سیکنڈ میں کتنی سانسیں چلتی ہیں، اتنی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اتنی ضرورت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی. کیونکہ کھانا پینا نہ بھی ملا تو مر جائے گا انسان، اور ویسے بھی مرنا ہے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج ہم ہیں تو آج تم ہو تو کل ہماری باری. میرے بھائیو، موت تو آنی ہے. ویسے بھی یہ جسموں کی موت آسان ہے، جسموں کی موت عام بات ہے، موت تو آنی ہے، اس سے کچھ نہیں بگڑے گا. اگر وہ مرنے والا توحید پر مرا، سنت پر مرا، تو گرچہ بھوکو پیاس سے مر گیا، لیکن کل قیامت کی دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دے گا. لیکن جس کو توحید کی غذا نہ ملی، جس کو دعوت اللہ میں توحید کی دعوت نہ ملی، سنت کی دعوت نہ ملی، شرک اور بدعات سے اور باطل راستوں سے آزاد نہ کیا گیا، اور وہ پیٹ بھر بھر کے مر گیا، آشائش کی زندگی جیتا ہوا مر گیا، خدمت خلق کی بوریاں لے کر کے، کھانے کے اناج کے کٹ لے کر کے، اور میرے بھائیوں کپڑے کا گٹھر لے کر کے، آسان چھات لے کر کے مر گیا، اور توحید اور سنت سے محروم رہا تو کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. میرے بھائیوں، امام احمد بن حنبل، امام اہل سنہ، فرماتے ہیں اس سے صرف اور صرف جان جائے گی، جہنم کا عذاب نہیں ہوگا. لیکن توحید و سنت کی دعوت نہ ملی تو انسان عذاب جہنم کا مستحق ہو جائے گا. میرے بھائیو، یہی بات شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے، یہی بات حافظ ابن القیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتابوں کے اندر 1 2 نہیں کئی بار کہی ہے، اور کاش اس کا وقت ہوتا کہ آپ کے سامنے پڑھا جائے تو وہ موتیاں میرے بھائیوں زیادہ ہمارے دلوں کو اپیل کرتی. بہرحال یہ صرف اور صرف روس اقلام ہے، جیسا کہ ذمہ داروں نے بتایا ہے کہ آگے کوئی مجلہ غالباً یا کوئی نمبر خاص شائع ہونے والا ہے جس میں یہ موضوعات مقالے کی شکل میں بھی شائع ہوں گے. اگر زندگی رہی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو ہو سکتا ہے کہ دلائل اکٹھا کر کے آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں. میرے بھائیو، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جماعت اہل حدیث کا مشن کیا ہے. اب ایک بات آخری جو کہنی ہے وہ اختتامی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ خدمت خلق کا کام سارے لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ کرتے ہیں، مسلم بھی کرتے ہیں، نان مسلم بھی کرتے ہیں، حکومت بھی کرتی ہے، سوشل لوگ بھی کرتے ہیں، سب لوگ کرتے ہیں، بلا تفریق کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. لیکن آپ کی دعوت توحید کا، دعوت سنت کا کام آپ کے سوا کوئی نہیں کرتا ہے. آپ تو 2.5% سے کم ہیں ان لوگوں کے سروے کے مطابق جو صبح و شام ہمارے خلاف باتیں کرتے ہیں. تو 2.5% آپ لوگ ہیں، اور 2.5% کی تعداد میں رہنے کے بعد اگر آپ اپنی انرجی خدمت خلق میں لگا دیں گے، 10 لاکھ 20 لاکھ 50 لاکھ کروڑوں روپے اگر آپ کپڑا پہنانے اور اناج کے کٹ بانٹنے، کمبل تقسیم کرنے، بک نوٹ بک تقسیم کرنے اور گھر کے بھاڑے بھرنے میں اگر آپ لگا دیں گے تو آپ اصل مشن پر کیا خرچ کریں گے جو کوئی نہیں کرتا آپ کے سوا. اور یہ خدمت خلق کا ایک بہت بنیادی مسئلہ یہ بھی ہے میرے بھائیوں کہ دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، دنیا کی کوئی بھی حکومت ہو، بحیثیت حکومت وہ اپنی رعایا کے کھانے پینے، ان کی معیشت، ان کا کاروبار، ان کا روزگار، ان کا میرے بھائیوں ان کی جاب کی عام طور پر ذمہ دار ہوتی ہے. اسی لیے تو الیکشن کے ٹائم پر شور مچتا ہے کہ نہیں مچتا ہے؟ اتنے لوگ بے روزگار ہیں، اتنے نوجوان بے روزگار ہیں، اتنے لوگوں کے پاس کوئی وغیرہ. تو میرے بھائیوں اب سوال یہ ہے کہ جو اصل کام حکومت کا ہے، حکومتوں کا ہے، اور سارے لوگ بھی کرتے ہیں،
हम उस मिशन में अपनी छोटी सी ताकत को 2.5% की ताकत को अगर हमने झोंक दिया उसके अंदर सारी सरगर्मी, या हम मुतासिर हो गए कि समाज के अंदर इतनी सारी मस्जिदों की क्या जरूरत है, इतने सारे दीनी इदारों की क्या जरूरत है, गली गली में मस्जिद है, मोहल्ले मोहल्ले में मस्जिद है, कितनी मस्जिद बनाओगे, हो गई मस्जिदें बहुत ज्यादा, अब तुमको हॉस्पिटल कायम करने की जरूरत है, अब तुमको कम्युनिटी सेंटर कायम करने की जरूरत है, आपको मैरिज काउंसलिंग का सेंटर कायम करने की जरूरत है, आपको कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज कायम करने की जरूरत है, तिब्ब के माहिरीन, मेरे भाइयों किसके माहिरीन, तिब्ब के माहिरीन, इंजीनियरिंग के माहिरीन आपको तैयार करना है, दुनियावी उलूम के पीछे आपको लगने की जरूरत है। मस्जिदें बहुत हो गई, मदरसे बहुत हो गए, अब इसकी जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों कितनी नादानी की बात है, भला सोचो, हमने अपने मिशन को नहीं समझा। हॉस्पिटल के लिए बीमार होने वाला जरूरी नहीं है कि अहले हदीस हॉस्पिटल में जा करके ही इलाज करे, जरूरी है बताइए जरा, कोई जरूरी नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल में किसी का भी इलाज हो सकता है। आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेकर के अपनी डिग्री हासिल कर सकते हैं, लेकिन मस्जिदें ना होगी तो इन मिंबरों से तौहीद की दावत नहीं मिलेगी कौम को, सुन्नत की दावत कौन देगा आपको। मेरे भाइयों इदारे ना होंगे अहले हदीसों के तो ये उलमा की जो खेप आप देख रहे हैं, जो अपनी ज़बान और कलम से दुनिया के सामने तौहीद और सुन्नत का मिशन पूरी जुर्रत के साथ फैला रहे हैं, ये मेरे भाइयों आपके मसनद खाली हो जाएंगे, आपके मिंबर खाली हो जाएंगे, आपके मकतबात में तौहीद और सुन्नत की किताबें कम होती चली जाएंगी। और ये कहीं वसवसा शैतानी है, कहीं वसवसा नादानी का है। हमारे अजीज नौजवान भी जब देखते हैं कि फला जमात काम कर रही है और वो यहां से वहां मेरे भाइयों सोशल काम पर लगी हुई है तो मुतासिर हो जाते हैं, कहते हैं देखिए सारी दुनिया काम कर रही है, जमात अहले हदीस काम ही नहीं करती। क्या करते हैं जमात के लोग, इनका कोई काम नहीं है। जमात मस्जिदों के लिए कोशिश करे, मोहल्ले मोहल्ले में, इलाके इलाके में मस्जिद बनाए, तौहीद की दावत का इंतजाम करे, उलमा को वहां पर मेरे भाइयों उलमा को का तकर्रुर करे, उनकी तनख्वाहों का इंतजाम करे, उनके बजट का इंतजाम करे, किताबें फराहम करे, अफराद की मेरे भाइयों तरबियत करे। ये काम आपकी निगाहों में कोई काम नहीं है, इसलिए कि आपका जहन बिगाड़ दिया गया। आपको तौहीद की दावत से हटाने के लिए, आपको अहले हदीस की इदारों से और उसकी तालीम से हटाने के लिए ये शोशा, ये फितना उम्मत के अंदर आम किया गया। आप होश के नाखुन लें, समझें जरा, इसको उसको देख करके ना मरूब हो जाए, क्योंकि खिदमत खल्क नहीं, दावत इल्लाह, दावत इल्लाह। अनाज बांटने वाला तौहीद की दावत देने वाले जैसा हो सकता है? नहीं हो सकता। मेरे भाइयों सोशल काम करने वाला कभी तौहीद और सुन्नत की तालीम देने वाले जैसा नहीं हो सकता। और यह मिशन सिर्फ हमारे पास है। दुनिया में यह मिशन किसके पास है? जमात अहले हदीस के पास। दुनिया के अंदर किसी भी नाम से वो जाने जाते हो, ये इम्तियाज है मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों। इसलिए मैं आखिरी बात कह रहा हूं कि अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने मिशन को सही मानों में समझने की तौफीक अता फरमाए। मैं ये नहीं कहता कि मेरे भाइयों जो जरूरतें होती है, तकाजे होते हैं, उनमें हम खिदमत खल्क न करें, बिल्कुल करें, लेकिन ये समझ करके करें कि उसका दायरा कितना होना चाहिए। आपके असल मिशन में आपके अफराद की ताकत, आपके माल की ताकत, आपकी जमात की ताकत का बेशतर हिस्सा, बुनियादी हिस्सा कहां सर्फ होना चाहिए? तौहीद की दावत में, सुन्नत की दावत में, तौहीद के खिलाफ, शिर्क के खिलाफ, तौहीद के खिलाफ जो शिर्क है उसके खिलाफ, और सुन्नत के खिलाफ जो बिदअत है उसके खिलाफ आपका असल मिशन होना चाहिए मेरे भाइयों। इसलिए किसी जमात से, किसी पार्टी से आप हरगिज मुतासिर ना हो जाएं, हरगिज मरूब ना हो जाएं, जिन्होंने सबसे बड़ा काम सोशल काम को बना रखा है, जो सबसे बड़ा काम, जिनकी कोई मस्जिद नहीं है मेरे भाइयों, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े हमदर्द मुसलमानों के और इंसानियत के अपने आप को बावर कराते हैं। ये लंबा मौका नहीं है, ना लंबी वजाहत का, ना नामों की वजाहत का मौका है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें दावत इल्लाह और खिदमत खल्क के सिलसिले में मनहज सलफ को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन रब्बल आलमीन। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलम व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।